Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lesson number 2 from unit number 10, simple harmonic motion. We will see what is simple harmonic motion. First of all, here I am going to start reading from page number 4, simple harmonic motion. Vibrations or oscillations is repeated back and forth motion along the same path. Vibrations occur in the vicinity of a point of a stable equilibrium. An equilibrium point is a point at which the net force acting on the body is zero. An equilibrium point is also called the stable point when at small displacement from it the net force pushes the body back to the equilibrium point. Such a force is called restoring force. Since it tends to restore equilibrium, consider a bowl and ball example under stable equilibrium condition. When ball is displaced from its equilibrium position, it will start moving under a restoring force toward moving and equilibrium position opposite to the displacement x. After reaching equilibrium position, the object will continue under inertia and will reach the other extreme position, and thus it will continue to oscillate back and forth. Simple harmonic motion is a special kind of vibratory or oscillatory motion which occurs whenever the restoring force is proportional to the डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है. तो किसी भी वाइब्रेटरी मोशन को, जो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी आगे पीछे मूव करती है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम के बारे में देखा. इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन जहाँ पे वो बॉडी स्टेबल हो. ठीक है. तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं. फिर रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी को बैकवर्ड मूव करवाती है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर फोर्स इंक्रीज करेगी तो डिस्प्लेसमेंट आल्सो इंक्रीज. ठीक है. एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Where the negative sign signifies that restoring force is directed toward the equilibrium position opposite to the displacement x. We can also define simple harmonic motion in terms of acceleration as the type of motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement x and is directed toward the mean position. Mean position or equilibrium position are same. A directly proportional minus x. In this equation represent the condition for simple harmonic motion. You can see a tip in box harmonic motion. Not all periodic vibrations are examples of simple harmonic motion since all restoring force are not proportional to the displacement. कि सारी सिंपल पीरियोडिक मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती. यानी जितनी भी वाइब्रेटरी मोशंस होती हैं, जो ऐसी बॉडी जब आगे पीछे वो सारी की सारी सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, क्योंकि उनमें सबकी रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल नहीं होती डिस्प्लेसमेंट के. एनी रिस्टोरिंग फोर्स कैन कॉजेज ऑसिलेटरी मोशन एंड इलेक्ट्रो डायग्राम ट्रेस द पीरियोडिक पैटर्न ऑफ द बीटिंग हार्ट. जब ईसीजी करते हैं, आपको पता है, तो इस टाइप का एक पैटर्न वो रिजल्ट में हमें मिलता है. तो अब इसमें देख रहे हैं आपको वेव्स नजर आ रही हैं. ठीक है. तो ये कौन सी पीरियोडिक मोशन है? बट द मोशन ऑफ द रिकॉर्डर नीडल इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. ये पीरियोडिक भी मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. इवन के आगे पीछे ये मूव करती है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. गॉट इट. इसमें रिस्टोरिंग फोर्स, as the restoring force in case is not always proportional to the displacement from the equilibrium position. क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन.
It is a type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and directed toward its mean position. सबसे पहले हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती क्या है? तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करती है. द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिपीटेड मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, या रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, यानी फोर्स अगर इंक्रीज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा. तो ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम फोर्स. और अगर हमारे पास एक बॉक्स है, एक मास है, ठीक है, जो अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ. जब हम इसको टच करते हैं फिर रिलीज करते हैं तो वो क्या होता है, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है. तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, उसको दोबारा बैकवर्ड ले आती है. तो मैस इसकी जो होगी मोशन होगी वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. गॉट इट? रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है? द रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट टू ब्रिंग अ बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, ऐसी पोजीशन जिस पे बॉडी स्टेबल होती है. ठीक है, जैसे अगर हम मैस अटैच टू द स्प्रिंग है, ठीक है, या आप यहाँ पे बॉल देख सकते हैं या ये पेंड्यूल देख सकते हैं. ठीक है, जब इस बॉल को हम लोगों ने छोड़ा वो आके इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फ्यू सेकंड के लिए स्टॉप करेगा, फिर वो आगे जाएगा. तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आती है उसको क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. गॉट इट? यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं. कंसिडर अ बाउल एंड बॉल एग्जांपल. When ball is displaced from its equilibrium position, it will start moving, restoring force toward equilibrium position opposite to the displacement. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बॉल है, ठीक है, उसको ऊपर से ए पोजीशन से उसको छोड़ा. अब बॉल आर पे आके थोड़ी देर के लिए स्टेबल करेगी, फिर वो बॉल आगे जाएगी, फिर वो बैकवर्ड आएगी. इसी तरह इसकी मोशन क्या होगी, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगी. तो कौन सी फोर्स इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, तो ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाती है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास इसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है. क्यों है सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन? जिसमें हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आती है. ठीक है, अब आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स के. आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू अंडर inertia and will reach other extreme position and thus will continue its backward and forward motion. ठीक है, ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आती है रिस्टोरिंग फोर्स कहती है. और ऐसी मोशन, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है, ठीक है, या जिसमें फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. होपफुली इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी. इस एग्जांपल में क्या था, हमारे पास एक बॉल है, उसको हमने बाउल में रखा, स्टार्ट पोजीशन से हमने उसको छोड़ा, वो मिड पोजीशन पे आके या मीन पोजीशन पे आके या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके या स्टेबल पोजीशन पे आके वो एक मिनट के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए रुकेगा, फिर वो आगे जाएगा. फिर इसी तरह तो उसकी मोशन कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. गॉट इट? अब इसको हम देखते हैं मैथमेटिकली. रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स से. एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इट मीन डायरेक्टली, कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे डिस्प्लेसमेंट आल्सो भी इंक्रीज. ठीक है, फोर्स को इंक्रीज करने से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, फोर्स को डिक्रीज करने से डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज करेगा. दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब हमारे पास दूसरा क्या है, एक्सीलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के. इसमें क्या है कि एक्सीलरेशन भी डायरेक्टली, एक्सीलरेशन क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस एक्स के.
अब हम देख रहे हैं द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द डिस्प्लेसमेंट x। हमारे पास रीस्टोरिंग कौन सी फोर्स होती है? जो बॉडी को बैकवर्ड लेके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टेड होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? ओके, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आपने देखी, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कब या पीरियोडिक मोशन कब सिंपल हार्मोनिक होगी? जब बॉडी ऐसी फोर्स जो बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाई या बॉडी को बैक एंड फॉरवर्ड मूव करवाए, ठीक है। ऐसी वाइब्रेशन फोर्स जिसमें ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को बैकवर्ड लेके आए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए कौन सी दो कंडीशंस है? इसके लिए एक कंडीशन है कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो -x के। दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो -x के। x क्या है? x इज डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? ओके, समिंग अप देखते हैं आज के हम लेसन में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कौन सी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऐसी मोशन जो ऑब्जेक्ट जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आए, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। फिर हमने देखा रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आती है। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसमें हमने एक बाउल की एग्जांपल देखी कि बाउल में अगर हम एक बॉल को स्टार्ट पोजीशन पे रखते हैं तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, स्टेबल पोजीशन पे 1 मिनट के लिए जाके, फ्यू सेकंड्स के लिए जाके रुकता है, फिर आगे जाता है, फिर एक फोर्स होती है जो उसको बैकवर्ड लेके आती है। उसके बाद हमने देखी कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी? हालांकि पीरियोडिक मोशन सारी वाइब्रेटरी होती हैं, लेकिन सारी पीरियोडिक मोशन ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। तो इसके लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। पहले ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। दूसरी कंडीशन है एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। तो होपफुली आज के लेसन के आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके लिए बुक रीडिंग करें, इस लेसन को 1 से 2 दफ़ा ज़रूर सुने ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो ये आप लोगों का रेफरेंस आगे गिवन है, टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 26 है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, शुड बी डन ऑन योर फिजिक्स नोटबुक। ओके, अल्लाह हाफिज।